Welcome again, dear students, and to be continue unit number 3, part 3, atmospheric pressure and wind system. In previous lecture, learning point have discussed meaning and measurement of atmospheric pressure, vertical and horizontal distribution of pressure belt, concept of pressure gradient and its relation with winds. Now we have discussed types of wind: planetary winds, periodic winds, and local winds. Winds. Winds is simply defined as air in motion. They are horizontal flow of air. Winds blow from areas of high pressure to area of low pressure. The speed of wind varies from absolute calm to speed as high as 380 km per hour. Wind develop as a result of spatial differences in atmospheric pressure. Generally, these differences occur because of uneven absorption of solar radiation at the Earth's surface. Types of wind. For ages, man has observed that in some areas of the earth, the winds blow predominantly from one direction throughout the year. In other areas, the wind direction change with the season, and in still other, the winds are so variable that no pattern is discernible. Despite these differences, the winds are generally under three categories. First, planetary winds. Planetary winds related to first the easterlies wind, the westerlies wind, and polar winds. B. Periodic winds. Periodic winds related to monsoon winds. And third, local winds. Local winds related to land and sea breeze, the mountain and valley breeze, hot winds. Local winds related to three main winds, but hot winds related to Lu, Fehan, Chinku, and cold wind. These are the three main types of the winds, and we have to study one by one. First, planetary winds. Planetary winds of permanent winds blow from high pressure belt to low pressure belts in the same direction throughout the year. प्लानिटरी विंड्स जो ब्लो करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होती है, मूव ऑन होती है. द ब्लो ओवर वास्ट एरिया ऑफ कंटेंट्स एंड द ओशन. दे आर ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली एंड पोलार विंड्स. इसकी बेस पर थ्रीज जो विंड्स बनती है वो ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज एंड पोलार विंड्स रहती है, जिसमें ईस्टर्लीज में क्या बताया गया है, द विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम सेम डायरेक्शन एंड मोस्ट ऑफन ट्रैवल अलॉन्ग डिस्टेंस, ऑल्सो नोन एज द परमानेंट winds or planetary winds. It is the subdivided into three categories. First, trade winds. Trade means the easterlies. The easterlies winds, and second, anti-trade winds. Anti-trade means the westerlies winds, and last, polar winds. First, the winds of easterlies. Winds of easterlies means trade winds. The equatorial region, the solar energy vertical, and there is development of low pressure belt between and 5 degrees north and south of equator. The uniform pressure gradient is poor
Hence, wind are weak and various air current rises upward from the surface. As we know that equatorial region, look at this picture. इक्वेटोरियल जो रीजन रहता है वो एवरी ईयर सोलार रेडिएशन यहाँ पर क्या होती है, वर्टिकली फॉर्म में यहाँ पर रीच होती है, पहुँचती है, जिसकी बेस पर यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर जो 0 डिग्री से 5 डिग्री इक्वेटर जो रीजन है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन पर, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीजेज रहेगा बट प्रेशर डिक्रीजेज। प्रेशर कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ की जो विंड्स है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, असेंडिंग फॉर्म में वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, जिसकी बेस पर इसको क्या कहा गया है, डोलड्रम। द डोलड्रम बेल्ट ऑफ लो प्रेशर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई अवर्टिंग, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी। Both sides of the doldrum, the winds blow from subtropical, the pressure cells towards equatorial wind blow from subtropical, the pressure cell towards equator, known as trade winds। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्ड में मूव ऑन हो रही है जो विंड, वो हाई प्रेशर ट्रॉपिकल ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पर क्या होती है, मूव ऑन होती है, जिसकी बेस पर यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेसिपिटेशन भी रहेगा और हाई ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर अवेलेबल होगी, जिसकी बेस पर यहाँ पर क्या कहा गया है, राइजेस होगी हवा, तो जिसकी बेस पर इसको ट्रेड विंड्स का नाम दिया गया है एंड ईस्टर्लीज विंड्स। नेक्स्ट, ट्रेड विंड्स below towards the equator an area of low pressure called doldrum। देखो यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन 0 डिग्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री इक्वेटर पर प्रेशर कैसा रहेगा, लो, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज, प्रेशर लो रहेगा, जिसकी बेस पर इसको क्या कहा गया है, डोलड्रम। Located between 0 degree to 30 degree north and south called trade winds। यहाँ पर 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 0 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये लोकेटेड होती है, जिसकी बेस पर इसको ट्रेड विंड्स कहा गया है। यूरोपियन सेलर यूज दीज विंड्स फॉर ट्रेड। इसको यूरोपियन सेलर जो है इसको इसलिए ट्रेड विंड्स का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो रहती है वो राइज अप होती हैं प्रेशर लो होने की वजह से। नेक्स्ट, एंटी ट्रेड विंड्स ऑफ वेस्टर्लीज। एंटी ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज, राइजिंग विंड एयर फ्रॉम older or equator become colder and easier while reaching the high level। जो एंटी ट्रेड विंड्स रहती है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रहता है वो कहाँ पर ऊपर राइज अप होता है, thus it begins to descend down around 30 degree north and south of the equator, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। 0 डिग्री से 30 डिग्री क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रेड विंड्स से मिलेगी, बट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ इक्वेटर से ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स जाती है, जिसकी बेस पर इसको क्या कहा गया है, एंटी ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज विंड्स को कहा बोला गया है। अब यहाँ पर जो है बिलो ऑफ द साउथ वर्ड एंड नॉर्थ ईस्ट, अगर हम ये इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे डायरेक्शन में, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब इसको सब डायरेक्शन में दिखाएंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ओके,
बिलो द साउथ वेस्ट, यहाँ पर आपको साउथ वेस्ट दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट। आप लोगों को ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, ग्लोब पर जो एरो है वहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, एंड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एंड साउथ सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या हो रहा है, बिलो हो रहा है, मीन्स हवाएं जो है यहाँ पर हाई प्रेशर होने की वजह से ये डिसेंड डाउन फॉर्म क्रिएट करती है। डिसेंड डाउन यानी नीचे की तरफ आने लगती है। इन दिस बेल्ट द एयर इज डिसेंडिंग एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज स्लाइटली, द वेदर कंडीशन आर स्टेबल with light variable winds. The weather is dry and fine. Sometimes the general calm is upset by the visiting storm or cyclone. Sometimes यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेशर हाई और लो होने की वजह से जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट आता है, मीन्स 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर पर, यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन, जो वेदर कंडीशन होता है उसकी बेस पर क्या होगा, यहाँ पर स्टॉर्म एंड साइक्लोन की कंडीशन आ जाती है। ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करेंगे तो सेलिंग ऑफ द शिप बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस बेल्ट एंट्री ट्रेड, मीन्स यहाँ पर जब शिपिंग के थ्रू, जब ट्रांसपोर्टेशन होता था शिप के थ्रू, तो यहाँ पर जो शिप होती है उसके अंदर हैवी एंड बल्कि गुड्स और एनिमल्स वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बट जब इस बेल्ट पर सी रूट्स जब आते हैं तो इस बेल्ट पर हवा का प्रेशर जो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई होने की वजह से शिप का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी बेस पर यहाँ पर एंशियंट टाइम में जो सेलिंग जो रहते थे, सेलर्स रहते थे, विसल्स वाले जो रहते थे, वो क्या करते थे, देयरफॉर हॉर्सेस वेयर ऑन ओवर बोट टू मेक द बोट लाइट। हॉर्सेस के जो रहते थे, हॉर्सेस की जो सेलिंग करते थे, शिपिंग पर इतना हैवी प्रेशर हो जाता था जिसकी बेस पर बोट को हल्का करने के लिए क्या किया जाता था, ये एनिमल्स को थ्रो किया जाता था, फेंक दिया जाता था सी में, बोट को लाइट वेट करने के लिए। हेंस दीज रीजन्स आर ओन एज हॉर्स लैटिट्यूड, जिसकी बेस पर इस लैटिट्यूड को मीन्स ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर पर जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है उसको क्या कहा गया है, हॉर्स लैटिट्यूड। Thus, in between the subtropical high and the subtropical low winds blow from west direction, both north and south of the equator toward the subpolar low pressure area are known as the westerlies. Polar winds. Polar winds ग्लोब पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप 90 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर, 19 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, बोथ स्फीयर का जो नॉर्थ एंड साउथ 90 डिग्री पोल है, ये यहाँ पर क्या होता है, पोलार विंड्स फ्लो होती है। एट द 60 डिग्री एंड 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर, there are subpolar low pressure belt running along Arctic and Antarctic circle. Further away from these belts, the pressure tend to rise due to low pressure succession towards north and south pole. आप लोग को यहाँ पर हम नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर देखे, यहाँ पर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देखे। बट 60 डिग्री पर जब हम आते हैं, 60 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड पर, तो यहाँ पर प्रेशर कैसा हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर पर कौन सा रीजन होता है, आर्टिक रीजन, एंड सदर्न हेमिस्फीयर अंटार्कटिक सर्कल प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर लो हो जाता है। हेंस पोलर एयर ब्लो फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड द सब पोलर लोज। These winds are north-easterlies in the northern hemisphere and southern hemisphere in the south hemisphere। यहाँ पर प्रेशर लो होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जिसकी बेस पर जो विंड्स होगी, विंड्स राइज अप एंड डिसेंड डाउन, यानी यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होगी, अप्स एंड डाउन मोशन होगा विंड्स का, जिसकी बेस पर आर्टिक रीजन एंड अंटार्कटिक रीजन, यहाँ पर पोलार जो विंड्स रहती है, जो पूरा कोल्ड रीजन होता है, यहाँ पर ठंड हवाएं, बहुत ज़्यादा ठंड हवाएं चलती हैं लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। दिस इज़ कॉल्ड एज द पोलार विंड्स। Thank you.